ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको शायद राउंड ऑफ कर देंगे और ये अप्रॉक्सीमेट रूल ही बताया गया है कि डबल्स इन एवरी 2 आवर। dy बाई डी एक्स एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे थे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। ये 2.718 से आगे तो चल रहा है पर 2.719 कभी नहीं होगा, ये जादुई नंबर। Hello students, many students who are studying in class 11th as well as 12th regularly ask me what exactly is Euler's number E, what exactly is Euler's number E, why its value is about 2.72, what exactly does it mean. I thought that I'll make a small video to clarify your doubts, rather to make you feel more comfortable with this amazing number E. So let us try to understand what exactly is E. इसको समझने में थोड़ा सा लॉगरिथम पता होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को पता होगा तो वो शुरू के 5 मिनट स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट फैमिलियराइज यू ऑल विथ लॉगरिथम इन 5 to 7 minutes maybe, right? Okay, suppose there are n bacteria in a culture and the count doubles every hour. There is a culture and there are n number of bacteria in that, and bacteria multiplies, and in every hour the number of bacteria just becomes double. So after t hours the number of bacteria will be make it n naught, I am so sorry. Initially there are n naught bacteria in the culture, and after time t there will be so many bacteria. Like if it is n naught, after 1 hour it will be twice of n naught. Let 1 more hour pass and it will become double of this, so it will become 2 to the power 2 n naught. 1 more hour passes and it becomes 2 raised to the power 3 n naught, double of this. So if t hours have passed, then the total count will be 2 raised to the power t into n naught, right? So this is the number of bacteria after t hours. Now this looks reasonable if this t is some whole number, 2 hour, 3 hour, 5 hour, 7 hour, then we get some whole number value of n. But what if t is 1.2 hour? What if t is 1.2 hour? So practically this may become a number involving some decimal, but number of bacteria cannot be in decimal, isn't it? Okay, तो practical लाइफ में हम उसको शायद राउंड ऑफ कर देंगे और ये अप्रॉक्सीमेट रूल ही बताया गया है कि डबल्स इन एवरी 2 आवर. Do not worry about that, but let us assume that n is something which depends on t as per this relationship. Here you can see that t is independent variable which is there in the exponent, which is there in the power. Such functions are known as exponential functions. अगर ऐसा लिखा है y is equal to x square, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में नहीं है, पावर में तो कांस्टेंट नंबर है, बट अभी जो लिखा है वो क्या लिखा है, y मतलब n, it is x raised to the power, no not x raised to the power, it is written that some constant k into 2 raised to the power x, it is of that kind of form. So x is the independent variable which is there in the power. Such functions are known as exponential function. This is an example of exponential function where the independent variable is in the exponent. Okay, common logarithm of a number is the exponent to which 10 must be raised to obtain the number. Common logarithm with base 10 जो आप कहते हो, which is mostly used for daily life calculations. So common logarithm of any number is the exponent to which 10 must be raised to obtain that number. What exactly it means? For example, 100 is a number. 100 is 10 raised to the power 2. We say logarithm of 100 with base 10 is 2. Logarithm of 100
with base 10 is 2. इसको ऐसा लिखते हैं आप, log with base 10 100 is equal to 2. अब इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लीजिए. Common logarithm of a number is the exponent, the power. Exponent means the power to which 10 must be raised to obtain that particular number. Now, I'll give you another example. 5 is 10 raised to the power 0.6990. अब ये कहाँ से आया उसकी चिंता अभी छोड़ दीजिए. और 10 raised to the power 0.6990 is 5. So, we will say that logarithm of 5 with base 10 is 0.6990. It is very obvious that if a number is less than 10, if a number is less than 10, for example 5, then 10 raised to the power, this power will be less than 1. So, if a number is less than 10, then logarithm of that number, which is this power, will be less than 1. So, logarithm of 5 with base 10 is some fraction, it is less than 1, right. Now, logarithm exists for all positive numbers. Yes, logarithm exists for fractions as well. 0.5 का भी logarithm होता है. What does it mean actually? Very simple. Take this example, another example. 3.25 can be written as 10 raised to the power 0.5119. 10 की power 0.5119 is 3.25. So, we will say that logarithm of 3.25 with base 10 is 0.5119. Now, what about 0.325? How to write 0.325? 0.325 can be written as 3.25 into 10 to the power minus 1. मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, पर आप में से जिनको ये नहीं आता होगा थोड़ा ठहर के बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप, अगर लॉगरिथम नहीं पढ़ा है. So 3.25 into 10 raised to the power minus 1. This is how you can write this. Now this 3.25 can be written as 10 raised to the power, 10 raised to the power. This 3.25 is 10 raised to the power 0.5119, and this is 10 raised to the power minus 1. So this is 10 raised to the power minus 1 plus this. So this is 10 raised to the power minus 0.4881. So 0.325 is 10 raised to the power minus 0.4881. So logarithm of 0.325 with base 10 will be minus 0.4881. So logarithm of a fraction will be a negative number. So logarithm of 0.325 is minus 0.4881, right? In fact, अगर आप देखेंगे logarithm with base 10, which is common logarithm, which is mostly used for numerical calculations. अगर मैं log with base 10, कोई नंबर है x, उसका log ले रहा हूँ, और ये नंबर x और log x का अगर ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ मोटा मोटी कुछ ऐसा आता है. जब x की वैल्यू 1 है तो लॉगरिथम 0 होता है. ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? लॉगरिथम 0. 1 is 10 raised to the power 0. So log 1 with base 10 is 0. So logarithm of 1 is 0. If the number is less than 1, then the logarithm is negative. जितना close to 0 जाएगा ये नंबर, उतना ही लॉगरिथम जो है नेगेटिव वैल्यू उसकी बड़ी होती चली जाएगी. और एक और पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. चलो, जैसे log है 10 का, log of 10 है, so it is 1 if we are taking it in base of 10. So this is the kind of graph we get if you plot log x versus x. ओके, अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है. आज की क्लास बेसिकली इस बात पे है कि यूलर्स नंबर क्या होता है. आइए समझते हैं. आई होप कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे नो डिफरेंशिएशन. आपने मैथ्स में नहीं तो 11th क्लास में फिजिक्स में ही थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ा है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. So let us look at derivative of logarithmic function. What is differentiation of logarithmic function? Suppose y is a function of x. Y is equal to log of x. Y is equal to log of x. Right? इसको हमें differentiate करना है. dy by dx निकालना है. तो dy by dx actually होता क्या है? Y is a function of x. x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू y है. Okay, x की वैल्यू प्लग इन कीजिए, you get a value of y. If the value of x is changed a little by delta x, if the new value of x is x plus delta x, then the new value of y will be
log of x plus delta x. If the value of x is changed by delta x, then the new value of y that you obtain from here will be this much. So this new value of y can be written as original y plus change in y. Okay, let me write it like this, y dash, new value of y. So when x is x, y is y. When x is made x plus delta x, value of y becomes y dash. What is change in y? This minus this. What is change in y? This minus this. If x is changed by delta x, then change in value of y is this minus this. So that change in y is written as delta y. We divide delta y by delta x. This is known as average rate of change of y with respect to x. Average rate of change of y with respect to x. And when we make delta x very small, that means in formal way we write it like this, limit delta x tending to 0, which means when delta x is made very small, then this ratio approaches a certain value, which is known as differentiation of y with respect to x. जब एक डेल्टा x को चेंज इन x को बेहद छोटा कर देते हैं, तो ये जो रेशियो है वो एक नंबर की तरफ जा रहा है. वो नंबर मान लीजिए a है, a की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं ये लिमिट a को अप्रोच कर रही है. इसको मैथमेटिशियंस कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको dy बाई dx लिखते हैं. और ये नंबर अगर a की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं dy बाई dx की वैल्यू a है. दैट इज हाउ यू हैव डिफाइंड डिफरेंशिएशन. So, okay, y is equal to logarithm of x. Then, if you make x plus delta x, if you change x by delta x, then value of y also changes. New value of y is log of x plus delta x. New value of y को मैंने लिख दिया है y plus change in y. एक ही बात है. y dash minus y is delta y. या y dash is nothing but original value of y plus change in y. x को delta x बढ़ाया या घटाया, बदला, तो y की वैल्यू y प्लस डेल्टा वाई हो गई. डेल्टा वाई बढ़ गई, घट गई, whatever. So this is new value of y, y dash. Now the difference, this minus this is delta y. So delta y is log x plus delta x minus log x. इस डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए. ये डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा x को ऐसे बाहर लिख दिया, तो ये ऐसा बन गया. यहाँ पे हमने लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी यूज की है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सुना हुआ है, कि log of a minus log of b in any base is logarithm of a by b. Students, जब मैंने यहां लिखा है y is logarithm of x, बेस क्या है? कुछ भी हो सकता है. अभी आप इमेजिन करके चलो बेस 10 है. अभी आप इमेजिन करके चलो बेस 10 है. मेरे पूरे डिस्कशन में आप मान के चलो बेस 10 है. 10, 2, 5, 9 कुछ भी हो सकता है, बट अभी आप मानो कि बेस 10 है, ऐसा मानो. नाउ दिस इज log a minus log b. So this can be written as log of a by b. तो इसको मैंने लिख दिया log x plus delta x divided by x. Log x plus delta x divided by x. This whole thing divided by delta x. Right? ये ऐसा हो गया. I hope you understand this. अब हमें पता क्या करना है? हमें ये पता करना है कि जब डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, तो ये कहाँ जा रहा है? किस नंबर की तरफ जा रहा है? When delta x is tending to 0, where is this expression going to? To which number this expression is approaching to? उसी को हम dy by dx कहेंगे. तो अभी ये जिस फॉर्मेट में है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है. अगर मैं डेल्टा x को बहुत छोटा ले लेता हूँ, बहुत छोटा, तो ठीक है भाई, चलो इसको इग्नोर किया. ये log x by x log 1 हो गया. log 1 0 होता है, चलो मान log 1 0 होता है, ऐसा मान गए. लेकिन ये 1 अपॉन डेल्टा x, ये डेल्टा x क्या है? टेंडिंग टू 0. तो ये 0 by 0 का फॉर्म हो गया. अगर मैं डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लिखूं, तो ये 0 by 0 जैसी कोई चीज लग रही है, विच इज इनडिटर्मिनेट एक्चुअली, विच इज नॉट डिफाइंड. तो ये अभी ऐसे फॉर्म में नहीं है जिसमें मैं लिमिट के बारे में कुछ अंदाज लगा सकूं कि जब डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं. इसको मैंने ऐसा लिख दिया. देखिए यहाँ फिर से एक और प्रॉपर्टी आ गई लॉगरिथम की, प्लीज ध्यान दीजिएगा. इफ m log a can be written as log of a raised to the power m. M log a can be written as log of a raised to the power m, right? So 1 by delta x is in place of m. 1 by delta x is in place of m. So I can write this as logarithm of this raised to the power 1 by delta x. This is what I have done here. अब इसको देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है जिसमें हम लिमिट के बारे में सोच सके.
तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होने से ये 1 की तरफ जा रहा है। ओके, log 1 0 की तरफ जा रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 की तरफ जा रहा है, log 1 0 की तरफ जा रहा है, बट ये कुछ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 बाई डेल्टा एक्स, तो 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी, अगेन इट इज मीनिंगलेस। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक, मेरी थॉट प्रोसेस को समझिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किस तरफ जाएगा अगर डेल्टा एक्स को हम बहुत छोटा करें। हमें कोई ढंग का फाइनाइट आंसर नहीं मिल रहा है, इसको फर्दर कुछ मॉडिफाई करता हूं मैं। अभी मैंने इसको, इस एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाई एक्स को छोड़ दिया, इस x को फिर से पावर में ले गया, यही चीज यूज करके, m log a इज log a रेज टू द पावर m। इस x को मैं वापस यहां ले गया तो ये x बाई डेल्टा x बन गया। यहां पे डिनोमिनेटर में एक x छूट गया। अब सोचते हैं कि जब डेल्टा x को बेहद छोटा किया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन कहां जा रहा है। लेट अस थिंक अबाउट इट, लेट अस थिंक अबाउट इट। इसका आंसर बहुत मुश्किल है इसका आंसर बहुत मुश्किल है बेटा। ये 1 बाई एक्स को 1 मिनट के लिए तुम छोड़ दो, दिमाग से हटा दो, सिर्फ इसकी तरफ देखो, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स नॉट एक्स बाई डेल्टा एक्स। एक्स नॉट, एक्चुअली एक्स नॉट नहीं, इसको एक्स लिख लीजिए आप, ये एक्स नॉट नहीं है, इट इज एक्स, आई एम सो सॉरी, आई हैव मिक्सड अप एक्स नॉट एंड एक्स। मैंने ये सोचा था कि जब एक्स एक्स नॉट है तो वाई वाई नॉट है, बट देन आई थॉट कि एक्स को एक्स ही लिखते हैं, वाई को वाई ही लिखते हैं। ऑल, नथिंग इज एक्स नॉट हियर, एवरीथिंग इज एक्स हियर। ओके, सो लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये कहां जा रहा है जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है। इसको समझने के लिए अभी लॉगरिथम को भी छोड़ देते हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि ये 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू द पावर एक्स बाई डेल्टा एक्स कहां जा रहा है जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है। बातचीत में आसानी के लिए डेल्टा एक्स बाई एक्स को मैं टी लिख दे रहा हूं। मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि 1 प्लस टी, दिस नंबर इज टी एंड दिस इज इनवर्स ऑफ टी, राइट। 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1 बाई टी। अभी मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये नंबर किस तरफ जाएगा अगर मैं डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं। Isn't it? ठीक लिखा है मैंने। ये नंबर की बात कर रहे हैं, दिस इज द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, वापस जाइए, दिस इज डेल्टा एक्स बाई एक्स, जिसको मैं अभी मन में टी बोल रहा हूं, 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1 बाई टी। अब मुझे ये सोचना है कि ये नंबर कहां जाएगा जब t की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। यही सोचना है ना मुझे। t किसको माना है मैंने, इसको, तो डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो t किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। अभी मैं सिर्फ ये सोचना चाहता हूं कि ये नंबर किधर जाएगा जब t 0 की तरफ जा रहा है। और अगर हम कुछ थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं कि दिस नंबर अप्रोचेस टू 2.718 व्हेन t टेंड्स टू 0। इसके लिए मैंने थोड़ा सी कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में डाल के रखा हुआ है, आपको जस्ट कन्विंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें ये कैलकुलेट करना होगा। अगर हम t की वैल्यू को ऐसे कोई नंबर्स दे दें, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। t को 1 ले लें तो ये 2 है, तो सबको दिख रहा है ये चीज। अगर t की वैल्यू 0.5 ले लें तो ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। t की वैल्यू 0.5 है तो ये स्क्वायर हो गया, ये 1.5 का स्क्वायर हो गया, 2.25 हो जाएगा। नथिंग सरप्राइजिंग, ठीक है। t की वैल्यू अगर मैं 0.25 ले लूं तो ये 4 हो जाएगा, एक्चुअली 1.25 की पावर 4 हो जाएगा। वो कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करने से ये 2.441 के आसपास आता है। ऐसे ही अगर मैं t की वैल्यू को कम करता जाऊं, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि when t is going to 0 where is this number going to, तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी से छोटा कर देता हूं।
t की वैल्यू को अगर हम 0.001 लेते हैं तो मेरे पास आता है 2.7169। t की वैल्यू को अगर मैं 0.0001 लेता हूं तो ये 1 प्लस टी रेस टू द पावर 1/t जो है ये 2.7181 आता है। ठीक, अब मैं देखता हूं कि मैं t को और छोटा करूं तो इस वैल्यू में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। t को और छोटा कीजिए तो आप हर बार पाएंगे कि ये 2.718 2.719 इसके बीच में ही रहता है, कभी भी 2.719 नहीं पहुंचता है। चाहे आप t को जितना छोटा कर लो, ये जो नंबर है ये कभी भी 2.719 नहीं पहुंचता है। हाँ, लेकिन इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस तक डिजिट्स होंगे, तो आंसर है वो किसी को नहीं पता। देयर आर इनफाइनाइट मेनी डिजिट्स। ये मैंने यहाँ पे डेसिमल के 3 प्लेस तक इस नंबर को एक्सप्रेस किया। गौर कीजिए, ये 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1/t, ये नंबर लगभग इस नंबर की तरफ जा रहा है, इससे थोड़ा बड़ा, व्हेन t इज टेंडिंग टू 0। इस नंबर को मैथमेटिशियन यूलर के ऑनर में यूलर्स नंबर कहा जाता है। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। आप में से कुछ लोगों को यह बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि आपने मान कैसे लिया कि ये लिमिट किसी नंबर की तरफ जा रही है व्हेन t इज अप्रोचिंग 0। तो इसका बड़ा सिंपल सा रैशनल है कि अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था, भाई ये जो ग्राफ बनाया था मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल रैशनल दे रहा हूं, हमारी बातचीत के लिए काफी है। ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो किसी भी पॉइंट पे y इज इक्वल टू log x अगर है तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो dy बाई डी एक्स तो फाइनाइट है, इस कर्व के लिए dy बाई डी एक्स तो फाइनाइट नंबर है, इजंट इट? dy बाई डी एक्स एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे थे इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, तो ये डेफिनेटली एक फाइनाइट नंबर होगा। एक गेस मार रहा हूं क्योंकि कर्व एक स्मूथ कर्व है, उसका dy बाई डी एक्स एक फाइनाइट नंबर दिख रहा है मुझे। किसी भी x की वैल्यू के लिए मुझे एक निश्चित वैल्यू दिख रही है उसकी, तो डेफिनेटली ये कर्व का यहाँ पे स्लोप टेंजेंट मारेंगे tan थीटा, यही dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स जब मुझे एक फाइनाइट नंबर दिख रहा है तो मैं एक गेस मार रहा हूँ, इंट्यूशन से समझ रहा हूँ कि ये एक फाइनाइट नंबर ही होगा। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि ये नंबर एक फिक्स नंबर की तरफ ही जा रही है। लेकिन वो फिक्स नंबर क्या है वो बताना बड़ा मुश्किल है, उसमें डेसिमल के कई प्लेसेस तक डिजिट्स हैं। पर ये डेफिनेट है कि ये चीज एक किसी खास नंबर की तरफ जा रही है। उस खास नंबर में करोड़ों डिजिट्स हैं, उस नंबर को हम ई कहते हैं, उसको यूलर्स नंबर भी कहा जाता है। अब बच्चों आप ये देखिए कि हमारा जो dy बाई डी एक्स हम निकाल रहे थे, वापस आइए, ये dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे हम। dy बाई डी एक्स निकालते हुए हम पहुंचे थे 1/x log ऑफ 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1/t, यही है ना। और हम डेल्टा x को टेंडिंग टू 0 कर रहे थे, मतलब t टेंडिंग टू 0 कर रहे थे। तो dy बाई डी एक्स इज 1/x इंटू लॉग ऑफ दिस नंबर। ये जो नंबर है व्हेन डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज e। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज 1/x log e, विच मीन्स अगर y इज लॉगरिथम ऑफ e, कोई भी बेस हो सकता है, सपोज बेस लॉगरिथम ऑफ x विथ बेस 10, ऐसा मान लें 1 मिनट के लिए, देन dy बाई डी एक्स इज 1/x लॉगरिथम ऑफ e इज अ नंबर विथ बेस 10। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इट मीन्स, क्योंकि हमारा जो लॉगरिथम है पूरे कैलकुलेशन में हम बोल रहे हैं लेट अस से लॉगरिथम 10 के बेस पे है, ये नंबर e है when delta x is tending to 0. So naturally y is equal to log x है with base 10, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1/x log of e with base 10 होगा। ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो बड़ा अटपटा सा देखने में लग रहा है कि y इज, अगर मैं बोलूं कि y इज लॉगरिथम ऑफ x and dy by dx is some constant number log of e into 1/x। तो ये बहुत अजीब लग रहा है, ये कांस्टेंट यहां विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। देखिए आप, यहां e जैसी कोई चीज नहीं है फंक्शन में और यहां पे आ जा रहा है, आंसर में आ जा रहा है, बड़ा अटपटा सा लग रहा है।
हम असहज महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार ये नंबर हटा सकते हैं क्या किसी तरीके से? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि dy by dx 1/x हो जाए? हो सकता है, हो सकता है, अगर ये नंबर 1 हो जाए। ये नंबर 1 कब होगा? जब लॉगरिथम का बेस 10 नहीं, ई खुद होता। अगर हमने ये जो y = log x लिखा है, इसमें लॉगरिथम का बेस यही वाला नंबर होता, 2.718 वाला ई, तो फिर देखिए ये जो कांस्टेंट है ये 1 हो जाता, और dy by dx की वैल्यू जो है वो सिंपली 1/x हो जाती, इजंट इट? ये अटपटा नहीं लगता? प्लीज इसको महसूस करो, फील करो। ये बड़ा अटपटा है कि y = log x है विद बेस 10, बेस 12, बेस 2, कुछ भी है। y = log x है तो dy by dx log of e विद द सेम बेस इंटू 1/x आता है। ये ई क्या चीज है? यहां तो था ही नहीं, कहां से आ गया? बड़ा अजीब लग रहा है ये देख के। उस अजीब सी चीज को हटाना बहुत जरूरी है, हटा देते हैं उसको। वो हटा कैसे सकते हैं? अगर हम लॉगरिथम को बेस ई में लें तो नेचुरली लॉगरिथम को अगर हम बेस ई में लें तो ऐसा कोई गंदा सा कांस्टेंट जो देखने में बिल्कुल अजीब लगता है वो नहीं आएगा कभी भी, और dy by dx 1/x होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि ई क्या होता है, और लॉगरिथम में नेचुरली हम बेस ई क्यों लेते हैं। ठीक है, टू अवॉइड दिस कांस्टेंट log e, it is customary to introduce another system of logarithm using base small e, right? In this system, of course, नए सिस्टम में logarithm of e with base e is 1. इसको हम अक्सर ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखते हैं। ln e का मतलब है logarithm of e with base e. ln x का मतलब है the base is e. So natural logarithm is often written as ln. Okay. So if log e is 1, then dy by dx here is 1/x. So students, I hope आपको ये तो समझ में आया कि e का यूज क्या है। पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूँ, सुन लो। अगर अभी तक बने हुए हो वीडियो में तो सुन लो मेरी बात। ये नंबर e जो है ये तो बहुत बाद में ऐसे आया। लोगों ने पहले कैसे इसको डिस्कवर किया? यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड और इन जनरल इंटर स्टेट ट्रेड भी बहुत बढ़ गया। पैसे का लेन देन बहुत होने लगा, ब्याज इंटरेस्ट लोगों की समझ में आने लगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से करने लगे। तो कहा यह जाता है कि आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, आप नंबर ई तक पहुंच जाएंगे। सुनिए, मान लीजिए एक बैंक है जो मुझे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है साल का। ठीक है, मैंने उस बैंक में 1 रुपया जमा किया, उस बैंक में 1 रुपया जमा किया, 1 साल के बाद वो 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100% इंटरेस्ट रेट है। 1 और साल बीतने देंगे तो ये 2 रुपया इस साल के शुरू में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, इस पे 100% इंटरेस्ट मिलेगा तो ये 4 रुपया हो जाएगा। सो हर साल डबल हो जाएगा। आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 रेज टू द पावर टी, मतलब टी इज द इंटरवल बेसिकली। ऐसा जैसे 5 साल बाद आपको निकालना है कितने पैसे हो जाएंगे, तो आप निकालोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया था, 1 रुपया, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100% इंटरेस्ट रेट है, अजूबा बैंक है 100% रेट देता है। सो 100/100 इट विल बी 1। 5 साल बाद जानना है तो दिस इज द अमाउंट दैट यू विल गेट, राइट? अब ऐसा सोचो कि मैंने, बैंक मैनेजर मेरा दोस्त है मान लो, उसको मैंने कहा कि भाई आप ईयरली कंपाउंड मत करो, 6 मंथली कंपाउंडिंग करो। मतलब मैंने उनको ये कहा कि 1 रुपया जो है मेरा, इसको आधे साल के बाद, दैट मीन्स 6 महीने के बाद मेरा ब्याज जोड़ दो इसमें। तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ के लिए तो आपको 100% नहीं मिलेगा ना, 50 मिलेगा, 12 महीने के लिए 100 है, तो 6 मंथ के लिए यहाँ 50 लिखा, 50/100 मतलब 0.5।
0.5, ठीक है। तो कहने का मतलब एक का 50% मिला 50 पैसे, तो ये हो गया 1.5 रुपया एक्चुअली 6 महीने बाद। अब अगले 6 महीने बाद एक और आधा साल बीतने देते हैं, कंपाउंडिंग हो 6 महीने में होने का मतलब अब ये 1.5 रुपये को मेरा प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा, और अगले 6 महीने में 50% 1.5 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1.5 रुपये में 50% मिला तो 75 पैसे मिल गए, तो ये एक साल के अंत में 2.25 रुपीज हो गया। अगर एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है तो 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा 100% रेट पे, लेकिन अगर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है तो वही 1 रुपया 100% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक साल में 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। जबरदस्त गेन है। अगर यही काम मान लीजिए कि साल में 4 बार किया जाए, बैंक मैनेजर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साल में 4 बार कंपाउंडिंग कर दो, तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग करने का मतलब हुआ 1/4 ऑफ द ईयर, 3 महीने के बाद 25%। साल में 4 बार कर रहे हैं तो 25% मिलेगा, ये 1.25 हो जाएगा। फिर 1/4 ईयर मतलब 3 महीने बीतने के बाद अब इसका 25% और जोड़ दीजिए। ऐसे ही 4 बार आपको करना है, तो आप पाएंगे कि साल के अंत में जो अमाउंट है, अभी जैसे हम कहीं पे लिख रहे थे वो शायद 2.44 हो जाएगा। बहुत बढ़िया गेन है। अगर हम इसको मंथली कंपाउंडिंग करने लगे, साल में 12 बार कंपाउंडिंग करने लगे, साल में 12 बार अगर कंपाउंडिंग करने लगे, या साल में मेरे पास जो लिखा था डेटा उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, साल में अगर 10 बार कंपाउंडिंग करने लगे, ऐसा मान लो 365 दिन होते हैं, हर 33 डेज पे इंटरेस्ट जोड़ने लगे अगर, तो ये साल में 10 बार कंपाउंडिंग करने से 2.594 हो जाएगा। अब अगर इसको हम साल में 100 बार कंपाउंडिंग करने लगे, हर 3-3.5 दिन में एक बार इंटरेस्ट जोड़ दें, तो ये अमाउंट 2.7048 हो जाएगा। अब इसको साल में अगर हम 1000 बार कंपाउंडिंग करने लगे तो 2.7169 हो जाएगा। अब साल में इसको अगर हम 10,000 बार कंपाउंडिंग करने लगे, मतलब शायद हर घंटे टाइप में अगर आपको ब्याज मिलने लगे, तो ये 2.718 हो जाएगा। पॉइंट ये है, आप साल में अगर हर सेकंड में इंटरेस्ट जोड़ने लगोगे तो भी ये नंबर कभी भी 2.719 नहीं होता, ये 2.718 से आगे तो चल रहा है, पर 2.719 कभी नहीं होगा। ये जादुई नंबर वही ई है, वही ई है। तो इंसान ने सबसे पहले ये जो जादुई नंबर है कि देखा कि कितनी बार भी कंपाउंडिंग करो, एक नंबर के आसपास आके वो फिर फिक्स हो जाता, बढ़ता नहीं है। इंसान ने सबसे पहले जादुई नंबर ऐसे पता किया, उसके नॉलेज में आया कि ऐसा कोई नंबर होता है अजूबा सा, जिसके ऊपर आपका अमाउंट जाएगा ही नहीं साल के अंत में। समझ रहे हो बात को? उस नंबर को बाद में अभी हमने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को प्रॉपर करने के लिए भी उस नंबर की महत्ता है, और उसको नेचुरल लॉगरिथम का बेस बना दिया गया, उसको हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली। अगर मिली तो इस वीडियो को तो शेयर कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।